Hello student, good morning, good afternoon, good evening to all. I hope that you will be fit and fine. And today we are going to be start the 11th class unit number 1 lecture number 2, that is laws of chemical combinations. My dear student, I have skipped a little bit one lecture 1 point, and that is the nature of matter, and that you may see into the my 9th class lecture, that is the nature of matter. If you have any confusion, जहाँ पर कि हम लोगों ने देखा है मैटर क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है. मैटर कैन चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, एंड like this. So all these things you will get into the 9th class lecture there in a very appropriate manner. For saving the time as well as the your interest, just here we have started here the laws of chemical combination. So laws of chemical combination क्या है, इसको सीखने के लिए सबसे पहले देखिए कि एटम्स है. हम जानते हैं कि एटम्स आर कंबाइनिंग एंड फॉर्मिंग द मॉलिक्यूल. एटम आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो फॉर्मेशन है मॉलिक्यूल का रैंडम होता है, किसी तरीके से जो है एटम कंबाइन कर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. दीज एटम्स आर कंबाइनिंग under the certain laws, and these laws are called as the laws of chemical combination. And what these are of 5 types, especially whatever we have to understand or learn into our syllabus. These are of 5 types, and I have coded this one CDMA G. CDMA का एक मोबाइल आता है, उसके बेस पे मैंने कोड किया है CDMA G. These are of 5 types. If we'll go through the abbreviation, so first one is here law of conservation of mass. This law of conservation of mass given by the Lavoisier, and you know that Lavoisier, who is this? He is the synthesizer of oxygen, as well as called as the father of chemistry. इनको father of chemistry का भी कहा जाता है. Then another law we have law of definite proportion. This law was given by the Joseph Proust. Another we have law of multiple proportion, which was given or proposed by the Dalton. Dalton, you know that, very famous scientist into the field of the chemistry, who is given the different laws, rules, and Dalton atomic theory, which one is very popular, और इसको हम लोग अगले subsequent lecture में पढ़ेंगे, which was given by the Dalton. Avogadro's law, Avogadro साहब ने दिया, and Gay-Lussac law of gaseous volume, इसको जो है गैलुसैक साहब ने दिया था. तो अभी आप इसका जो है कि स्क्रीनशॉट लेंगे. सबसे पहले हम लोग इन 5 लॉस को मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, एंड देन विल जस्ट डिस्क्राइब वन बाय वन दीज लॉज. नाउ in descriptive section of these laws, first we'll just explain about the law of conservation of mass. According to this, mass cannot be created nor destroyed. It is the first law of thermodynamics, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे thermodynamics के चैप्टर में. According to the first law of the thermodynamics, mass cannot be created nor destroyed. So here this one is the law of conservation of mass. इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि during the chemical reaction what happens? During the chemical reaction, reactant is converting into the product, यानी old substance is converting into new substance. So during this chemical reaction, during this conversion, mass of the reactant must be equal to the mass of product. यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि number और mass of element before the reaction must be equal to the number or mass of element after the reaction. For example, यदि हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें कि कार्बन इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन एंड सिंथेसाइजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड. सो मास, मोलर मास ऑफ कार्बन इज जस्ट 12 ग्राम. सभी को पता है मोलर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम. मोलर molecular mass of oxygen is 32 gram. So
and combining forming the carbon dioxide. So see here 12 plus 32, how much it will be? 44 gram. So this one is just a proofing, this one is explaining the law of conservation of mass. अगला हमारे पास जो नियम है, लॉ है, that is the law of definite proportion. just we'll see. तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. Now the law of definite proportion, it is stated that a given compound always contains exactly the same proportion of element by mass. इसका मतलब क्या है? यानी जब कभी भी कोई एलिमेंट आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाएगा तो कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट का मास होगा हमेशा क्या होगा? फिक्स्ड होगा बाय द प्रोपोर्शन, बाय द जस्ट लाइक, यानी मॉलिक्यूल और कंपाउंड के अंदर जो मास होगा एटम का, दैट विल बी फिक्स्ड. फॉर एग्जांपल, जस्ट हियर Proust has taken the cupric carbonate, and in this cupric carbonate just what he found, the percentage of copper, percentage of oxygen, percentage of carbon. Natural percentage it was of copper 51.35%, 9.74, 38.91, एंड जब उन्होंने सिंथेटिक देखा तो दैट वाज द प्रोपोर्शन सिमिलर एज इन केस ऑफ नेचुरल क्यूप्रिक कार्बोनेट. इसका मतलब क्या है कि यदि हम सिंथेटिक और नेचुरल किसी भी प्रकार के कंपाउंड का एलिमेंटल एनालिसिस करें तो उसमें जो है एलिमेंट का जो मास होगा वो फिक्स्ड होगा, डेफिनेट होगा. इसको एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल हियर इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, just oxygen as well as hydrogen, it will be present in a fixed mass that is 2 gram as well as 16 gram. यानी यदि हम वाटर को चाहे किसी भी सोर्सेज से लें, सी से लें, रिवर से लें, या फिर उसको लैब में सिंथेसाइज करें, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास हमेशा फिक्स्ड होगा और वो कितना होगा? 2 as well as 16 ग्राम. Then next law we have to start. Then other law is law of multiple proportion. This law is given by the Dalton. If two or more than two elements combine to form more than one compound, the mass of one element that combined with fixed mass of other element are in whole number. It is a statement, but what the real meaning of this law? That is, यदि दो एटम और एलिमेंट आपस में कंबाइन करके दो या दो से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उन कंपाउंड के अंदर किसी एक एलिमेंट का जो मास होगा वो मल्टीपल प्रोपोर्शन में होगा. मल्टीपल प्रोपोर्शन इन द सेंस 1:2:3:2 सो ऑन. फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक कंडीशन में क्या बनाता है? वाटर मॉलिक्यूल. दूसरे कंडीशन में हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड. तो यदि हम ऑक्सीजन के मास की बात करें तो इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 ग्राम. इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का मास कितना है? 32 ग्राम. तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इनटू दिस रिएक्शन द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट आइदर इन 16:32 या वी कैन से 1:2. So 1:2 is what? It is the multiple form, hence this proves the law of multiple proportion. अगला नियम हम लोग के पास है ये. Now the next law we have here Avogadro law, and this one is given by Avogadro, and it is stated that equal volumes of gases at the same temperature and pressure should contain the equal number of molecules. मतलब क्या है कि यदि दो या दो से अधिक गैसों को हम लोग सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रखें और उनका यदि वॉल्यूम इक्वल है तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? बराबर होंगे. इट वाज जस्ट स्टेटेड बाय द एवोगाड्रो, हेंस इट इज़ कॉल्ड एज द एवोगाड्रो लॉ.
And more important point to be remember here, this Avogadro scientist has just done the distinction between atoms and molecule. यानी molecule क्या होता है, it one is just made up by the atoms, hence molecule is called as polyatomic moiety in chemistry. Next law we have here, Gay-Lussac law of gaseous volume. This was given by Gay-Lussac scientist, and it is stated that when gases combine or synthesize in a chemical reaction, they react in a simple ratio of volume at same temperature and pressure. क्या मतलब है कि यदि गैसों को आपस में हम लोग रिएक्ट कराएं या गैसों को आपस में सिंथेसिस करें तो ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन गैसें जो है अपने फिक्स्ड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगी. मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर हियर, इसके पहले जितने भी लॉस थे वो मास के ऊपर डिपेंड थे, मास के ऊपर बेस थे, लेकिन यहाँ पे गै-लुसाक ने वॉल्यूम के साथ काम किया, गैसों के साथ काम किया. गैसों का वॉल्यूम मेजर करना ईजियर है एज़ कम्पेयर टू द मेजरमेंट ऑफ मास. इसलिए जहाँ भी गैसियस सिस्टम की बात हम लोग करेंगे वहाँ पे ये गै-लुसाक लॉ इम्पॉर्टेंट हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट कराएं ऑक्सीजन गैस से तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल. पहले हम मास के बेस पे देखें तो ये 2 ग्राम यदि हाइड्रोजन आप लेंगे तो 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करना पड़ेगा 18 ग्राम 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए. ये तो मास के बेस पे. लेकिन यदि हम यही वॉल्यूम की बात करें, टू बी सिंसाइज व्हेन द 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस विल रिएक्ट द हाफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, देन 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर विल सिंसाइज इनटू द केमिकल रिएक्शन. दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अपकमिंग लेक्चर स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में. जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें कि यदि 100 ml हाइड्रोजन गैस को लिए हम तो हाउ मच ml ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, हाँ बताइए कितना, 50 ml ऑक्सीजन विल जस्ट रिक्वायर्ड टू बी सिंसाइज द 100 ml ऑफ वाटर वेपर. तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को समझा. इसका आप जो है कि नोट्स बनाएंगे, 1 by 1 NCERT लाइन को पढ़ेंगे, वीडियो को वॉच करेंगे. और एक और चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको पूरा वीडियो देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिगनिंग से लास्ट तक एंड तक क्लियर हो पाए. कुछ लोगों का क्या है, बीच में वीडियो देखना छोड़ देते हैं, अपने आप पढ़ने लगते हैं. लाइन बाय लाइन NCERT पढ़िए, फुल वॉच कीजिए वीडियो को, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए, क्लियर कीजिए. यदि कोई डाउट है सो यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर 7880882988. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच.